Now this is the second video in chapter 2. In continuation, we are doing the long-term goals and economic planning. The first three we have already discussed in the first video. Now we come to the fourth goal, modernization. Modernization means adoption of modern technology in the process of production, growth and social outlook. Now adoption of modern technology in production is very clear. Like in agriculture, when we start using machines, tractors, etc. So it means introduction of technology in agriculture, and which leads to modernization. Again, the same thing we can do in terms of industries, using of latest technology. But when we talk about social outlook, it also means, as you can see here, gender empowerment. मॉडर्नाइजेशन डज नॉट ओनली मीन कि हम पहले से ज़्यादा सामान बनाते हैं, पहले से बेटर क्वालिटी का सामान बनाते हैं या मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इट ऑल्सो मीन्स द चेंज इन द सोशल आउटलुक सच कि there is gender empowerment, particularly talking about women, that women should get more opportunities, the same as men. Okay, so when we talk about modern countries, they are not just modern in the sense of GDP. The women are also equally empowered. All the classes and sections are equally empowered. So this is one target which we cover under modernization. So it means less labor required per unit of output. This also means the use of more machines so that less of labor is required in the output. Use of technology in productive activities, I've already shared it with you. Equity here means social justice. Social justice नाम हमने बहुत सुना है, which means development हम ऐसे करें that the gap between rich and poor should not increase. Reduction in the inequality of income and wealth. Reduction in the gap between rich and poor. Upliftment of weaker sections. This should be done. Plan कोई भी हो, प्लान उस तरह से बननी चाहिए कि वीकर सेक्शन के पास उस प्लान का बेनिफिट पहुंच सके, चाहे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू. रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. When weaker section will be benefited, their standard of living will be better than before. Fair distribution of resources. अगर resources, for example, income ही fairly distributed है, तो ऐसा नहीं होगा that there will be only few rich people in the country and others will be surviving on whatever they have. Fair distribution means हम resources को इस तरह से plan करें कि सबके पास में a fair share of resources, of national resources रहे. Inclusive growth, more participation of weaker section. Inclusive growth का मतलब ये है, in the process of production, the rich and the privileged class, उनका participation होता है because they are having the resource in the form of money, wealth, capital. लेकिन weaker section को भी अगर हम growth process में include करें तो उसको inclusive growth कहते हैं. तो equity का target हम इन points को अगर follow करेंगे, we will be able to successfully implement the goal of equity. Next we come to evaluation of Indian planning. These were the 5 objectives: economic growth, full employment, self-reliance, modernization and equity. अब इनमें हमने ये 5 objectives in the process of planning किस हद तक achieve किए. The evaluation of Indian planning means क्या हमने achieve किया और कहाँ पर हम lag behind कर रहे हैं आज भी. Number 1, achievement में increase in national income from 0.5% to 4%. हमारी जो नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही थी इनिशियली जब हमने प्लानिंग स्टार्ट की, उस वक्त में 0.5% जो बहुत ही कम है उस रेट से इंक्रीज कर रही थी. अब वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 4%. 4% मतलब हर साल 4% नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें एक स्टडी इंक्रीज रहा है हमारी नेशनल इनकम का, विच इज़ डेफिनेटली बेटर देन 0.5% ओवर द पीरियड ऑफ प्लानिंग, ओवर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. Proportion of people below poverty line has reduced from 34% in 1960-61 to 21.9% in 2011 and 12. People below poverty line means all those people who cannot afford the basic necessities in their life. यानी उन्हें proper food, clothing, shelter अगर available नहीं है, so those people will be called below poverty line. 34% population का poverty line के नीचे होने का मतलब ये है almost 1/3 पॉपुलेशन हमारी गरीबी रेखा के नीचे, ऐसे लोग जो कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते. 1/3 हमारी पॉपुलेशन ऐसी थी. अब हम आते हैं 21.9%, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर 34%, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. ओके, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 2.7% इन द फर्स्ट प्लान to 5.3% in the 12th plan. As you can see, it is just almost the double in the respect
of like mathematically if we see 2.7%, डबल होगा 5.4%, so almost there. ओके तो पहले से इम्प्रूवमेंट है हमारी पर कैपिटा इनकम में. हमने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वी हैव सीन एन इम्प्रूवमेंट, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगी तेजी से, पर कैपिटा इनकम भी तेजी से बढ़ेगी. नेक्स्ट वी कम टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. पहले से बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं. इनके बारे में इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर्स टू कम, बट लेट मी टेल यू, जैसे मनरेगा वगैरह है. ओके अभी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट और ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहले से बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं. 70 lakh more jobs in first plan and 340 lakh more jobs in the seventh plan. So this data is itself indicative of that we have created more jobs in the process of planning. Equity में हमने क्या अचीव किया है? पहले से बेहतर है, but as I've told you, we are still not there. हमने पहले से बहुत सारे प्रोग्राम्स अपलिफ्टमेंट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए चलाए हैं. उनमें से ज़्यादातर में कुछ अचीवमेंट्स भी हुए हैं हमारे, but we cannot say that the gap between rich and poor or socially backward and socially well off classes has reduced. ऐसा नहीं हुआ है. To some extent it has reduced, but not to a great extent. Modernization, more use of machines in agriculture. ऐसा हम देखते हैं कि मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ा एग्रीकल्चर में एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमने ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, थ्रेशर्स इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. ग्रीन रेवोल्यूशन इज 1960s की बात हम कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज में हमारा मॉडर्नाइजेशन दिखाई देता है. दैट इन द 10th वी आर द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमने हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप की, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप की, और अगेन with the help of industrial development we have been able to also increase employment opportunities. Infrastructure हमने बहुत अच्छे से डेवलप किया है. इसमें लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का. और भी अगर हम देखें, अब रेलवेज की अगर अकेले बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बुलेट ट्रेन नाउ. ओके मोर रोड्स अवेलेबल टू द पीपल. नेक्स्ट वी कम टू सेल्फ रिलायंस. इसमें हमारा अचीवमेंट ये रहा है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसमें हम वापस आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. इस ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के बाद में वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. कंज्यूमर गुड्स को हमने प्रोड्यूस करने में वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट. ये दो चीज़ें जो हम पहले इम्पोर्ट करते थे, अब हम उनको खुद बना पाते हैं. वी डू नॉट इम्पोर्ट देम एनीमोर. इंटरनेशनल ट्रेड में वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इंक्रीज्ड, यानी ना सिर्फ हमारा वॉल्यूम यानी जितना सामान हम बाहर के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते थे, न सिर्फ वो बढ़ा है बल्कि उसकी वैल्यू भी बढ़ी है. सो इंटरनेशनल ट्रेड में वी आर बेटर ऑफ देन वी वर बिफोर. एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये स्पेशल मेंशन क्यों है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स. अब तो हम इंजीनियरिंग गुड्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो वी आर टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो साउंड, बेटर ऑफ देन बिफोर. यहाँ पर कुछ फेलियर्स जो रहे इकोनॉमिक प्लानिंग के, इसमें सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इस सब के बावजूद जब हम इक्विटी की बात करते हैं एंड मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन साथ के साथ द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज़ नॉट वाइडन, येस, बट इट हैज़ नॉट रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑल्सो. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है. तो एक गोल इक्विटी का हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी हमने, तो आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है. क्यों? क्योंकि लेबर फोर्स बढ़ रहा है 2.6% के रेट से और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है 2.2% के रेट से. यहाँ पर हमारी प्लानिंग का फेलियर है या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ का फेलियर है? दिस नीड्स टू बी थॉट अपॉन. ओके, बिकॉज यहाँ पर हमें अपना थॉट ये देना चाहिए कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है दैट इवन दो वी आर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वी आर नॉट एबल टू curtail the unemployment. Poverty, 21.9% people still below poverty line, we have already discussed. Now, high inflation, mismatch of growth of goods and services and population. Again the same thing, population इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि inflation यानी महंगाई बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है, साथ के साथ पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है. अगर यहाँ मेंशन करें हम कि जो ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है उसका, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ रही है. और पॉपुलेशन का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है, विच मीन्स 1, 2,
4, 16. सो बाय द टाइम हम वहाँ पर 4 पे पहुँचे, यहाँ 16 पे पहुँच गए, तो गैप अपने आप ही नज़र आता है आपको. So due to this, less goods and services are available per capita, or there is inflation in the economy. Agricultural development overlooked industrial development and vice versa. शुरू के कुछ प्लान्स में हमने एग्रीकल्चर पर फोकस किया क्योंकि हमारी फूड प्रॉब्लम थी. उस बीच में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लैग बिहाइंड किया, और जब हमने इंडस्ट्रीज पे डेवलप किया, फोकस किया आफ्टर 1960s, तो हमारा एग्रीकल्चर लैग बिहाइंड किया, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में जो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद में एग्रीकल्चर में कुछ मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ. लास्ट फेलियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, फॉल इन परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड फ्रॉम 0.8% टू 0.5%. यानी हमारा ग्लोबल ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड है वो 0.8% से 0.5% पर आ गया, यानी कम हुआ, जिसका रीज़न है इनवर्ड लुकिंग जो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी. इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब ये था दैट वी यूज टू फोकस ऑन आवर प्रोडक्शन मोर देन ऑन इम्पोर्टिंग स्टफ फ्रॉम अदर कंट्रीज. साउंड अच्छा करता है कि हम इम्पोर्ट कम करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे लिए ये पॉलिसी इन द लॉन्ग रन अच्छी नहीं रही, क्योंकि हमने इम्पोर्ट्स कम करने की तरफ सोचा. हमारे को फोकस करना चाहिए था अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए. तो ड्यू टू दिस रीज़न हमारा ग्लोबल ट्रेड फॉल किया फ्रॉम 0.8% टू 0.5%. सो अगर आपसे इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन प्लानिंग पर पूछा जाए तो अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स दोनों बताने हैं आपको. That's all in chapter 2. You'll only be asked the objectives, long-term objectives of economic planning and evaluation of Indian planning. Okay, thank you.